Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, we are here to discuss electricity MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. देखते हैं हम. ऑलरेडी अगर आपने सारे वीडियोज़ इलेक्ट्रिसिटी के देख रखे हैं तो आप MCQs भी आराम से समझ जाएंगे, देख लेंगे, समझ आएंगे आपको. लेट्स सी. फर्स्ट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट flowing through an electrical press if an amount of charge passing through the conductor in 10 minutes is 300 coulomb. गिवन है आपको Q कितना है 300 coulomb, टाइम कितना है 10 minutes. If you convert into seconds, how much it would be? 600 seconds. 16 to 10 is 600 seconds. अब आप जानते हैं कि I क्या होता है Q by T. So it would be 300 divided by 600. It would be 0.5 ampere. It should be correct answer. Let's see. You can see here correct answer is 0.5 ampere. Right? Very easy. Let's move to next. When a 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 2 volt battery, R कितना गिवन है आपको 4 ohm, V कितना गिवन है 2 volt. The number of coulomb passing through the resistor per second, number of coulombs passing through the resistor per second, टाइम कितना गिवन है 1 second. तो by Ohm's law, which law? Ohm's law. Ohm's law क्या बताता है? V equals to IR, I equals to V upon R. V is given as how much? 2. R is given as 4. करंट की वैल्यू कितनी आई 0.5 एम्पियर. नाउ Q is equals to IT. Yes or no? coulombs की बात पूछी हमें. I की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू पर सेकेंड. तो Q की वैल्यू कितनी है 0.5 coulomb. I hope you got it. Answer is 0.5 only. Right? I hope ये समझ में आया होगा आपको. Next, a wire of length L made of material of resistivity rho is cut into 2 equal parts. L लेंथ का वायर था, उसको हमने L by 2 दो हाफ्स में काट दिया. उसका रेजिस्टिविटी कितना था रो, तो अभी भी उसका रेजिस्टिविटी कितना रहेगा रो ही रहेगा. यस और नो? मटेरियल चेंज थोड़ी हुआ है. नाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टिविटी में क्या कोई चेंज आएगा लेंथ में चेंज आने से? आई डोंट थिंक सो. सो व्हाट वुड बी योर आंसर? ए, रो ओनली. यू कैन सी हियर. ऑलराइट, what is the explanation? Resistivity of the material depends only on nature of the material, not dimensions. तो उसको कितना भी काटो, कितना भी मोड़ो, कुछ भी करो, उसका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड. किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया गया है. The graph best showing the variation of its resistance is with temperature. अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी. यहाँ डिक्रीज कर रही है, यहाँ भी डिक्रीज कर रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है बट नॉन लीनियर वे में. सो आई थिंक दिस वुड बी द राइट आंसर. क्यों?
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी. सो यू कैन सी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature, hence our answer A is correct. In the higher classes you will see R at temperature T equals to R naught 1 plus alpha T. Alpha is any constant, gradient बोलते हैं इसको. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. An electrical appliance has a resistance of 25 ohm. R कितना गिवन है, 25 ohm. When this electrical appliance is connected to a 230 volt supply, the current passing through it will be, you are given voltage given है आपको, resistance given है, current क्या होगा, by Ohm's law V equals to IR, I equals to V upon R. Yes or no? V कितना given है आपको, 230 volt and R is given as 25 ohm. कितना होगा, less than 10 actually, 25 10 से 250, तो I think C would be the answer. Let's see. C 9.2 ampere. Very easy. Let's see next. Keeping the potential difference constant, the resistance of the circuit is halved. तो करंट के लिए क्या होगा. ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और बहुत इजी सा क्वेश्चन है. लेट्स सी, देयर इज नथिंग टू हाई इन दिस क्वेश्चन. एक गुब्बारा नहीं बनाना, सिंपल समझो. देखो हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, मतलब V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है, इट मीन्स योर IR मस्ट बी व्हाट, कांस्टेंट. अगर IR की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो यहां से हम कह सकते हैं I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2. अब ये 1 और 2 कैसा है, इनिशियल और फाइनल, 1 2. अब रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ्ड. इट इज गिवन दैट R2 की वैल्यू को आपने कितना किया है, R/2, R1/2. अब पूछा है I2 में कितना चेंज करें. ऑलराइट, सो इफ वी प्लेस R2 की जगह R1/2 रखते हैं हम, I1 R1 इक्वल्स टू I2. R2 की जगह हमने लिखा क्या, R1/2. R1 got cancelled, so it gives I2 equals to twice of I1. Easy. V constant मतलब IR constant, I1 R1 equals to I2 R2. R2 की वैल्यू रखिए R/2, RR gets cancelled. I2 की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइस ऑफ I1, मतलब करंट को कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा. You can see the answer. Current is doubled. Clear guys? I hope it is very clear to you. आते हैं ऐसे questions. Next, a battery of 10 volt. Battery है 10 volt की. It carries this much coulomb of charge through a resistance of 20 ohm. Then the work done in 10 seconds is, वर्क डन पूछा है, वर्क डन जूल में भी है. देखो यहाँ पे है क्या, वर्क डन क्या है, वोल्ट, ओम और चार्ज और टाइम दे रखा है. डू यू नो एनीथिंग, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का है पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज अपॉन चार्ज. यस और नो. फ्रॉम दिस वर्क डन किसके इक्वल होता है,
पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल की वैल्यू कितने गिवन है 10 वोल्ट और चार्ज कितना है 20,000 कूलम। तो आपको वर्क डन इन 10 सेकेंड्स पूछा है थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, तो वर्क डन सिंपली कितना हो जाएगा, this and this is irrelevantly given to you, very simple it is. So it would be 2 into 1 2 3 4 5, 2 into 10 to power 5 joule. B would be answer. Alright, देखें आप यहाँ पे R की वैल्यू और T की वैल्यू ऐसे दे रखी थी, आपको हीट नहीं निकालनी है, आपको सिंपली वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो आंसर वुड बी बी, W इक्वल्स टू क्यू ई, सॉल्व किया एंड यू गॉट द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस निकालो जिसका वी आई ग्राफ गिवन है, इधर किया हुआ V और इधर I गिवन है, राइट। तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया V अपॉन I। अगर स्लोप की बात करें तो वी आई ग्राफ पे जो स्लोप होगा वो कितना होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, यही तो स्लोप होगा। मतलब लाइन का अगर हम निकालें क्या स्लोप, वो किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की। व्हाट इज स्लोप, एक्स वाई पे अगर आप कोई लाइन लेते हो तो स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यस और नो। यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा आई। तो स्लोप कौन देगा आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू ही देगा। तो इस लाइन की अगर हम स्लोप निकाल लें तो देखें, रेजिस्टेंस निकालनी तो 15 पे हमने लिया पॉइंट ये, और 9 पे ये पॉइंट लिया हमने सपोज, राइट। उस पॉइंट पे आर हम निकालते हैं, आर की वैल्यू क्या होती है वी अपॉन आई, और यही क्या है आपका स्लोप है वी आई ग्राफ पे। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रखें कितनी आ रही है 9, करंट की वैल्यू 15, तो इट रिड्यूस टू हाउ मच 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो स्लोप की या आर की वैल्यू क्या आएगी 3/5। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आई, बी आंसर आएगा 3/5। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज बी आंसर 3/5, यू कैन सी हियर, राइट। आया समझ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देख सकते हैं आप, आर इक्वल्स टू वी बाय आई, रेजिस्टेंस ही वी आई ग्राफ पे, अगर वी इधर लिया हुआ है इधर लिया हुआ है तो रेजिस्टेंस ही स्लोप देगा, ऑलराइट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वी इधर आई इधर है, ठीक है, तो वहां स्लोप क्या बन जाता है, स्लोप तो हर समय क्या होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी होगा यहाँ पे, मतलब वहां पे स्लोप होगा 1/r के इक्वल, रेजिस्टेंस का इनवर्स। 1/r इज द स्लोप हियर, यहाँ स्लोप है r, क्यों, इंटरचेंज कर दिया एक्सिस को हमने, ऑलराइट। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वो बता दिया आपको, ध्यान से देखें प्लीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If in the given arrangement the 3 resistors are to be replaced by a single resistor, what will be the value of this resistor? 6 और 6 किस में है यहाँ पे, पैरेलल, तो 6 और 6 का नेट रिजल्ट कितना आएगा 3 ओम। 3 6 होते तो 2 ओम आता, 2 6 है तो 3 ओम आएगा, सॉल्व करके देखना। और 3 + 6 इज 9, तो आंसर वुड बी 9 ओम, राइट। ये पैरेलल अरेंजमेंट है, और इस पैरेलल के बाद ये 3 ओम आया और ये 6 ओम, सीरीज में ऐड किया तो आंसर आया 9 ओम। और ये 3 ओम कैसा है वो बताया था, लो चलो
1 by r dash equal to 1 by 6 plus 1 by 6. It becomes 2 upon 6 1 by r dash. r dash की वैल्यू कितनी आई? 6 upon 2 means 3 ohm. I hope you got it. Answer is 9 ohm. Let's move next. Two devices are connected between 2 points say A and B in parallel. Parallel में connect किए हैं दो devices. So the physical quantity that will remain the same between 2 points is what? Current, resistance, voltage, none of these. It would be voltage. Parallel में हर समय voltage क्या रहता है? Same रहता है. Alright. In parallel combination, voltage remains same. Next, the least resistance obtained by using 2, 4, 100 is. Least resistance की बात की है. Least resistance मतलब कैसे कनेक्ट करना है इन्हें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है. सीरीज में ऐड करने पे तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल में ऐड करने पे मिनिमम रेजिस्टेंस. मिनिमम मतलब लीस्ट. तो जो लीस्ट रेजिस्टेंस आएगा अगर इन चारों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना, आंसर उससे भी कम आता है. तो इट वुड बी लेस देन 1 ओम. अगर इन सबको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, इट वुड बी लेस देन 1 ओम इवन. राइट. हर एक इंडिविजुअल से भी कम आएगा. तो 100 से भी कम, 2 से भी कम, 4 से भी कम, मतलब 1 से भी कम. ऑलराइट. तो आंसर वुड बी लेस देन 1. In parallel combination, the equivalent resistance is smaller than the least resistance. Alright, the answer is C. Next, a wire of resistance R1 is cut into cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance कितना होगा? देखो इधर कितने पीस में कनेक्ट किया है. R is proportional to length. यहाँ बाकी proportionality देखनी length की. It's cut into 5 equal pieces. Alright. तो हर पीस जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? R by 5. अगर ओरिजिनल की थी R तो इतने पार्ट की भी R by 5, इसकी भी R by 5, इसकी भी R by 5, इसकी भी R by 5, उसकी भी R by 5. 5 इक्वल पीसेस है ना. नाउ 5 इक्वल पीसेस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो नेट आर कितना आएगा? R by 5 प्लस 1 by R by 5 प्लस 1 upon R by 5 प्लस 1 upon R by 5 प्लस 1 upon R by 5. ऑलराइट. तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 1 by R इक्वल टू 5 upon R by 5. इसको R डैश नाम देते हैं. ये R डैश नहीं तो R इक्वलेंट. तो यहाँ पे R इक्वलेंट अगर हम लें तो वैल्यू कितनी आएगी? R अपॉन 25. ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर वुड बी व्हाट? 25. तो R1 अपॉन R2 अगर बोले हैं तो आंसर ये R1 है, ये R2 है. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 by 25. ओके, सॉरी, ओरिजिनल को R1 लिया है, इसको R2 लिया है, तो इसको उल्टा कर देंगे. ये R1 है, वहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना. दिस इज R1, दिस इज R2. पूछा क्या है? R1 अपॉन R2. R1 डिवाइडेड बाय R2 कितना हो जाएगा? 25 इधर आ जाएगा, ये R2 इधर चला जाएगा. इट वुड बी 25. ऑलराइट. किस तरह पूछा है, क्या पूछा है, थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान दें उस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज with a given equivalent resistance of 10 ohm. When connected in parallel, they give 2.4 ohm resistance. समझना,
दो रेजिस्टेंस है R1 R2, when they are connected in series में कनेक्ट करेंगे R1 प्लस R2 ऐसे कनेक्ट होंगे। ये कितनी रेजिस्टेंस देते हैं? 10 ओम देते हैं, बता रखा है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज दे गिव 10 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो दोनों 5 के होंगे तो भी 10 दे सकते हैं, 6 4 के होंगे वो भी 10 दे सकते हैं, 8 2 के होंगे वो भी 10 दे सकते हैं। तो ए बी डी 3 करेक्ट आंसर हो सकते हैं अभी तक। आगे पर जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तब उनका रेजिस्टेंस कितना है? 2.4। दोनों 5 को कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 1 बाय आर डैश इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5। तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी? 5/2, इट वुड बी 2.5 ओम। तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट नहीं है। सेकेंड 6 and 4, 1 by r dash equal to 1 by 6 plus 1 by 4. It would be what? ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 6 4 24, 1 by r dash। r dash की वैल्यू कितनी आई? 24 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2.4। सो यही आपका करेक्ट आंसर है। 8 2 को भी आप चेक कर सकते हैं। तो सीरीज में इस कॉम्बिनेशन ने रेजिस्टेंस दी कितनी? 10 ओम। पैरेलल में कितनी रेजिस्टेंस देगा? 2.4 ओम। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 6 ओम एंड 4 ओम। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। प्लीज बी अवेयर एंड डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, 2 रेजिस्टेंसेस। ओह, इट्स द सेम क्वेश्चन। इसका आंसर हम देख चुके हैं। If R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively operating at 220 volt, then R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R1 से, R1 R2 इक्वल होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं। तो देखो क्या, if these two operating at same voltage, तो यहाँ देखें पावर इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। यस और नो? V इज सेम। तो यहां से हम देख सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज़्यादा। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो 60 वाट इज ग्रेटर देन 40 वाट, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 is greater than P1. So ultimately P2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 by R2 greater than 1 by R1। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? ऑपोजिट। कितना? P2 greater than P1 था और R1 greater than आएगा R2। I hope you understood. आया समझ में कि नहीं? R1 ग्रेटर देन R2 देख सकते हैं आप यहाँ। यूजिंग पावर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय P। मोर द पावर लेसर द रेजिस्टेंस। जिसका पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम है। अकॉर्डिंगली P2 इज ग्रेटर देन P1। तो अल्टीमेटली इसका उल्टा हो जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। आई होप ये समझ में आया होगा गाइस आपको। इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कॉइल इन ए हीटर कंज्यूम पावर P on passing current if it is cut into 2 halves and joined in parallel। एक हीटर कॉइल है जो P पावर कंज्यूम करती है ऑन पासिंग करंट। इफ इट इज कट इनटू 2 हाफ्स एंड जॉइंड इन पैरेलल, पैरेलल में ज्वाइन किए 2 हाफ कनेक्ट करके। तो देखो P को अगर कट किया है
देखें यहाँ पे, इसके साथ देखें आप, मज़ा आएगा। ओरिजिनल पावर कंज्यूम क्या होता है, हमने फॉर्मूला कौन सा लिया, वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हेन यूज्ड इन पैरेलल, देखो वोल्टेज सेम रहेगा, सो नाउ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नाउ पैरेलल में हमने बोला ना, यहाँ पे हमने उसको पैरेलल में कंबाइन किया है, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इंडिविजुअल R1 R2 की वैल्यू कितनी, R/2 R/2। तो अल्टीमेटली पैरेलल की वोल्टेज कितनी हो गई, R/4। तो न्यू पावर कंज्यूम कितना होगा व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वी स्क्वायर अपॉन RP, वी स्क्वायर अपॉन R/4, मतलब 4 टाइम्स। तो अल्टीमेटली अगर आप ये कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा कि उसका पावर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको एमसीक्यू समझ में भी आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट लगे डू कमेंट। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.